Good morning. I am Lalwade Yadav from CPA Azamgarh. Okay. Today we are studying new chapters. Chapter 3. That is lesson 3. Chapter 3. Chapter 3. Electric current. Okay. Current, electricity. Okay. Current, electricity. First we are studying about electric current. We are studying about electric current in class 10th. So we revise the electric current. Electric current. What is electric current? Electric current is defined as the rate of flow of electric charge through any section of a wire. ओके यानी किसी भी वायर के सेक्शन में, वायर के किसी भी पार्ट में करंट के फ्लो होने का जो रेट है वही इलेक्ट्रिक करंट होगा, और चार्ज के फ्लो होने का जो रेट है वही इलेक्ट्रिक करंट होगा. इट इज डिनोटेड बाय सिंबल I. दैट इज वी कैन से इट इज डिफाइंड एज rate of flow of electric charge. Flow of electric charge. Electric charge through any section of wire. It is denoted by symbol I. It is denoted by symbol I. So electric current total charge flowing, total charge
total charge flowing upon time taken. टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल चार्ज सपोज कर लीजिए Q है। इफ टोटल चार्ज Q फ्लो इन टाइम T, then current I is equal to Q by T. Unit if charge dq flows through a wire in small time dt. If a charge dq flows in small time dt, small time dt, then current I is equal to dq by dt. If number of free electron is n, we know that Q is equal to Ne, where n is number of free electron. N is number of flowing electron. Flowing electron and A is charge on one electron. Charge on one electron, then I is equal to Ne upon T. Unit of current unit of current of the charge Q is coulomb and time is second. Coulomb per second is equal to ampere. Okay. amperes. देखिए
किसी भी कंडक्टर्स में अगर जो है कि कोई भी करंट फ्लो होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना। इन कंडक्टर्स current flows with the flowing of free electrons. Free electrons only. केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इसमें, यानी इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है, और कोई चीज़ नहीं फ्लो होती है, पॉजिटिव चार्ज या आयंस इत्यादि वगैरह नहीं फ्लो होता है। इस बात को केयर करिएगा कि किसी भी कंडक्टर्स दैट मीन्स मेटल्स में करंट फ्लो होता है थ्रू विद द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये तो कंडक्टर्स की बात है। एयर्स हो या लिक्विड हो, एयर या लिक्विड में करंट फ्लो होता है मोशन थ्रू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। in gas or liquid, गैस या लिक्विड में, ठीक, करंट फ्लोज through the motion of positive and negative charge. Sorry, positive and negative charge, that means positive and negative ions charge. Okay, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज या आयन। अब देखिए ऐसे ये है, कोई एयर हो या गैस हो, इसमें जो है कि कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे यानी नेगेटिव आयंस। तो देखिए अगर ये पॉजिटिव आयंस इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो इसमें जो है कि, और नेगेटिव आयंस इसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा। ये लिक्विड या गैसिंग मीडियम के लिए है, तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग द पॉजिटिव आयंस, ठीक। इन द गैस or liquid, direction of current along motion of positive ion
पॉजिटिव चार्ज यानी आयन and opposite to negative ion. यानी चार्जेज ओके। तो इस तरह से जो है कि नेगेटिव आयन जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव आयन जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी के अलोंग इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। लेकिन मेटल्स में केवल जो है कि नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, और इस इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का जो कि फ्लोइंग होती है इन कंडक्टर्स और मेटल। इन मेटल्स current flows in opposite direction to the motion of electron. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। ओके, अब एक न्यू वर्ड आया है फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? free electrons. We know that all metals made up of a large number of atoms, and atom consist proton, electron and neutron. Proton and neutron consist in the nuclei of the atom, but electron revolve around the atom in path. Okay, near about circular path. So we know that number of electrons and number of protons both are equal. In this condition atom is neutralized, that is atom contain no charge. यानी इस कंडीशन में एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि एटम में जितने प्रोटॉन्स के नंबर्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होंगे। ओके, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होने से उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। बट ड्यू टू थर्मल एजिटेशन sum of electron of the atom leave its own orbit and move free in metals. कुछ जो कि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स के आउटर ऑर्बिट में होंगे उन पर न्यूक्लियर फोर्स
दैट इज कूलॉम्स फोर्स वीक होगा और वो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, हीट के थ्रू से जनरल टेम्परेचर पर वो इतनी एनर्जी कंटेन कर लेंगे कि वो अपने ऑर्बिट को लीव कर देंगे, छोड़ देंगे और फ्री रूप से जो कि मेटल के इनसाइड मूव कर लेंगे। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द metals or conductor. Okay. Therefore next day we can study drift velocity. Okay, so thank you.